Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem C, circular local min-max from Code Forces round 794 division 2. Okay, so we will discuss the problem statement, then approach also, after that code also. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go to YouTube, subscribe this YouTube channel Coding Talkies Newton School. Okay, where I am posting like all the editorial videos from Code Forces, Lead Code, Art Coder, okay, and videos related to blockchain also. So if you want to learn blockchain or want to know about something about blockchain, you can just visit this YouTube channel Coding Talkies Newton School. In the end, if you haven't checked Newton School pay after placement program, just go check that pay after placement program, where they will train you as a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed for CTC of 5 to 40 LPA. Okay, and if you want to check their insights, like how many students have already get placed, and what is minimum CTC, what is like their maximum CTC, their placement rate, number of companies visited their Newton School, reviews of a student who have already get placed by Newton School, you can just visit their website. You can get the link in description. Also there are contact details, so if you want to like get the follow-up from their side, you can just contact in that number. Okay, now let's start with our today's problem, in which you are given n integers a1 to an. Is it possible to arrange them on a circle so that each number is strictly greater than both its neighbors or is strictly smaller than both its neighbors? Okay, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्वाइट क्लियर. हमें एक एरे गिवन है, हमें वो कैसे अरेंज करनी है. दैट इज, या तो जो किसी इंडेक्स पे भी नंबर है दैट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स साइड इंडेक्सेस, एंड ईदर this is the condition, or the number at any index is smaller than both of its side indexes. Okay, so you can read the condition here also, that any number bi must be greater than bi minus 1 and bi plus 1, or should be less than bi minus 1 and bi plus 1. Okay, where bi is the rearrangement of array A. Now and one more thing, we have to arrange this array in a circular order. Okay, that means the last number in the array should be greater than its previous index and first index of array. Okay, so this is also a condition. Now in which like format you have to give the output. If the answer is no, just print no, otherwise print yes, and the final arrangement too. Now how you can do that? Problem statement is quite clear. I have already explained you दैट तुम्हें कोई एक एरे गिवन है, तुम्हें अरेंजमेंट करनी है सच दैट कि तुम्हारा कोई भी इंडेक्स पे नंबर है वो तुम्हारे प्रीवियस और नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा हो या छोटा हो. ठीक है, सपोज तुम्हें कोई भी एरे गिवन है A1 A2 अप टू AN. ओके, एंड तुमने इसका अरेंजमेंट किया. सपोज एक न्यू एरे में B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7. ठीक है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट था. तुमने स्टार्टिंग इंडेक्स B1 ले लिया ऑब्वियसली. ठीक है, अब तुम चाहते हो कि ये जो इंडेक्स है, ठीक है, अभी तुमने इसके लिए डिसाइड नहीं किया क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स भी इसको मैटर करेगा. ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़, मैं इस इंडेक्स से बात करता हूँ. सपोज इन एनी केस मैंने बोला कि ये इंडेक्स दोनों से बड़ा होगा. ठीक है, मैं नेक्स्ट कंडीशन में छोटा लेके भी दिखाऊंगा. अभी तुमने सपोज किया कि ये दोनों से बड़ा है, तो तुमने ऐसे बना दिया. ठीक है, अब सिंस B2 इज़ ग्रेटर देन B3, B3 को तुम्हें अपने नेक्स्ट और प्रीवियस इंडेक्स से छोटा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि B2 को तुम ऑलरेडी ग्रेटर देन ले सके, तो तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली. ठीक है, B4 मस्ट बी ग्रेटर देन B3 बिकॉज B2 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन B3. ओके, नाउ सिंस B4 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन B3, you need to do something like this, that B4 must be greater than B5 also. क्योंकि तुम देखो, तुमने पहला नंबर अरेंज किया, तुम्हारे बाकी के सारे अरेंजमेंट खुद ब खुद चलते जाएंगे. कैसे? तुमने ऑब्वियसली B2 को अपने अगल बगल से बड़ा किया. अब B3 से जैसे कि वो बड़ा हो गया, तुम्हें B3 को अपने अगल बगल से छोटा करना पड़ेगा. ठीक है, अगेन अब B5 छोटा है तो तुम्हें B6 से भी छोटा करना पड़ेगा. B6 B5 से बड़ा है तो तुम्हें B7 से भी बड़ा करना पड़ेगा. अब B7 छोटा है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा. बट यहाँ पे देखो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया. B1 B2 से तो छोटा है लेकिन B1 से बड़ा है. ठीक है, ना सो यू कैन सिंपली सी that
हमें जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाली चीज़ें लेनी है वो ऑल्टरनेट लेनी है, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर को अभी ग्रेटर देन बना रहा हूँ ith इंडेक्स पे, तो मुझे i+1th इंडेक्स पे उसको अपने दोनों साइड इंडेक्सेस से स्मॉलर देन बनाना होगा, ठीक है। सो इफ़ सम नंबर इज़ ग्रेटर देन राइट नाउ, उसका जो साइड नंबर है वो स्मॉलर देन होगा अपने दोनों साइड इंडेक्सेस से। दैट इज़ अंडरस्टूड। कैसे होगा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब इस प्रोसेस में तुमने एक नंबर को ग्रेटर देन बनाया, फिर दूसरे नंबर को छोटा, फिर दूसरे को बड़ा, ठीक है, फिर दूसरे को छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो इस प्रोसेस में तुम्हें अगर एक ग्रेटर देन साइन के लिए एक स्मॉलर देन साइन मिल रहा है, ठीक है, तब तो तुम ईजिली वो चीज़ कर सकते हो। बट इन एनी केस जहाँ पे भी तुम्हारे जो ये ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 ये जैसे ही जो तुम्हारे ग्रेटर देन और इक्वल्स ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस हैं ये ऑड होंगे, और यू कैन से जैसे ही तुम्हारे जो नंबर्स हैं B1 से B7 ये ऑड नंबर्स होंगे, वहाँ पे तुम्हारा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, हाउ मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ही तुम्हारे जो टोटल नंबर्स इन द एरे हैं वो ऑड होंगे, वहाँ पे तुम्हारा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि तुम एक नंबर तुम्हारा जो लास्ट में है या तो लास्ट वाला या तो फर्स्ट वाला वो हमेशा रह जाएगा, ठीक है। तुमने यहाँ पे फर्स्ट से शुरू नहीं किया इसलिए फर्स्ट वाला रह गया, तुम अगर फर्स्ट से शुरू करते तो तुम्हारा लास्ट वाला रह जाता, ठीक है। इन दिस वे मुझे एक चीज़ पता लगी, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज़ ऑड, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा और तुम्हारा आंसर नो हो जाएगा सिंपली। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे व्हेन इट इज़ इवन। ओके, इन दैट केस तुम्हारी ये जो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है दैट यू नीड टू रीअरेंज द एरे such that both the elements in its left and right side is greater than और smaller than। उस केस में तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो फॉलो करना है, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज तुम्हारी एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने बोला कि तुमने अगर एक एलिमेंट लिया है 2, तुम्हें 2 को दोनों से, या फिर मैं पहला एलिमेंट लिखता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। अब तुमने 1 लिख लिया, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे देखोगे सच तुमने ये सारी एरे सॉर्टेड ली है, राइट, ठीक है। तुम्हारी जो भी गिवन एरे है तुम उसको भी सॉर्टेड ले सकते हो, ठीक है। तुमने एरे को सॉर्ट कर लिया सबसे पहले, फाइन। अब तुम यहाँ पे देखोगे और एक कंडीशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम्हें यहाँ पे कि n जो है वो इवन है, क्योंकि ऑड के लिए हमारा आंसर नो हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसके जो राइट हाफ के एलिमेंट्स हैं और इसके जो लेफ्ट हाफ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो लेफ्ट हाफ के एलिमेंट्स सारे के सारे छोटे होंगे उसके राइट हाफ के एलिमेंट्स हैं। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट हाफ में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे छोटे होंगे राइट हाफ के एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट इफ़ मुझे जहाँ जहाँ पे भी नंबर को बड़ा बनाना है, ठीक है, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट इंडेक्स से, मैं वहाँ पे ये सारे नंबर्स यूज़ कर लूँ, और जहाँ जहाँ पे भी छोटा बनाना है मैं वहाँ पे ये सारे नंबर्स यूज़ कर लूँ। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब होगी कैसे ये देखो, तो मुझे मान लो 1 है, ठीक, 1 को मैंने यहाँ से यूज़ किया, 4 ले लेता हूँ यहाँ से। अब 4 जो है बड़ा बनाना था तो मैंने यहाँ से लिया, अगेन मुझे छोटा बनाना है तो मैं यहाँ से लेता हूँ, अगेन बड़ा बनाना है 5 लेता हूँ, अगेन छोटा बनाना है 3 लेता हूँ, अगेन बड़ा बनाना है 6 लेता हूँ। अब तुम यहाँ पे देखोगे सिंस 6 मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर है मैंने ऑब्वियसली छोटा बनाया, तो 6 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, अपने लेफ्ट वाले नंबर से, लेफ्ट हाफ एरे के नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ऑड जब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन दैट केस योर आंसर विल बी सिंपली नो। जब इवन था तुम्हें अरेंजमेंट ऑलरेडी पता चल गया, ऑल्टरनेट प्लेसेस में तुम्हें लेफ्ट हाफ एरे और राइट हाफ एरे रखनी है, ठीक है। 1 2 3 ये वाली रख दो, 4 5 6 ये वाली रख दो। तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। इन दैट केस तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो ऑल्टरनेट हो जाएंगे, दैट इज़ पहला नंबर छोटा बनेगा या फिर पहला नंबर बड़ा बनेगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर छोटा बनेगा अपने दोनों साइड इंडेक्सेस से, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तुम वो भी फॉलो कर सकते हो ना। दिस इज़ द केस जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, येस एंड सिंपली प्रिंट द एरे? ऑब्वियसली नो, बिकॉज एलिमेंट्स इन द एरे आर नॉट ऑलवेज डिस्टिंक्ट, ठीक है। सारे के सारे नंबर्स हर बार डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। इन दैट केस तुम्हारी चीज़ क्या होगी, इन दैट केस तुम्हारे कुछ नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। एंड व्हाट यू नीड इन क्वेश्चन,
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्मॉलर टू, ठीक है, तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्मॉलर देन और ग्रेटर देन चाहिए। तो तुम ये चीज़ को कैसे चेक करोगे कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्मॉलर देन टू है या नहीं, ठीक है। उसके लिए तुम्हें जब भी अपनी फाइनल एरे मिलेगी, तुम एक बार पूरी में इटरेट करके अपनी कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन चेक मतलब कि अपने साइड इंडेक्स से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर कहीं पे भी नंबर स्मॉलर देन होगा या फिर इक्वल होगा कहीं पे भी, तो वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है और आंसर नो है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन ही था, बस तुम्हें एक चीज़ जो मुझे विजुलाइज करवानी थी वो मैंने करवा दी तुम्हें, ठीक है। यू कैन चेक द टैग सॉर्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नाउ हियर इज़ द कोड, इनपुट ऑफ एरे ए, देन सॉर्ट एरे, देन मैंने एक j इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, मैंने आंसर वेक्टर बनाया। जितने भी लेफ्ट हाफ के एलिमेंट्स थे उनको मैंने कहाँ डाला, 0 2 इवन इंडेक्सेस पे, यू कैन से, ठीक है। और जितने भी राइट हाफ के एलिमेंट्स थे मैंने उनको कहाँ डाला, ऑड इंडेक्सेस पे। मुझे ऑल्टरनेट डालने, तुम उल्टा भी कर सकते हो। मैंने ए को वापस से आंसर के इक्वल बना दिया। अब मुझे अपनी एरे तो मिल गई है, मुझे उसके बाद चेक करना है सिंपली इटरेट करके, इफ़ अपने दोनों एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, सिंपली कंटिन्यू, अदरवाइज फ्लैग को 1 कर दो और ब्रेक कर जाओ। इन द एंड इफ फ्लैग 0 है, प्रिंट योर एरे, अदरवाइज प्रिंट नो। वन कंडीशन यू कैन ऑल्सो पुट, अगर एलिमेंट्स ऑड हैं यू कैन सिंपली प्रिंट नो, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की। Now this is the code. If you have any doubt you can ask me in comment section always. In the end, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel. And if you haven't checked Pay After Placement program, just go check their Pay After Placement program and get the most out of it. It is an amazing course. If you are worried about your placement, just go opt for this course and surely will get placed for CTC of 5 to 40 LP. So thank you guys for watching this video.